Hello friends, welcome to UPSC Select. We at UPSC Select are very happy and very excited to launch a new initiative by the name of Daily Prelims MCQ series, in which we will not only discuss 5 MCQs from a prelims point of view, which have a very high probability to be asked by UPSC in the upcoming examination, but moreover, we will also cover these 5 topics or 5 questions from your mains perspective, right? And also try to give you a conceptual clarity which will eventually help you in your interview, right? So it is going to be beyond a question and answer session, right? And आपको इस चीज़ में बहुत मज़ा आएगा. You are going to enjoy this initiative. You are going to love this session because it will eventually help reduce your workload, right? We will see how and why. So let's begin by a quote given by Mr. Benjamin Franklin, who is considered to be one of the founding fathers of USA, and famously is known for his kite and electricity experiment. So I quote him, by failing to prepare, you are preparing to fail. So this quote is a very deep quote. अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, इसको इंटरनाइज करें, तो इससे आप क्या समझते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन में ईमानदारी नहीं बरत रहे, अगर आप प्रिपरेशन में ही फेल कर जा रहे हैं यार, तब भी आप प्रिपेयर ही कर रहे हैं, बट वो प्रिपरेशन किस चीज़ की है? वो प्रिपरेशन है फेलियर की, राइट? सो आई आस्क यू टू बी प्री प्रिपेयर्ड. अगेन, बी प्री प्रिपेयर्ड, राइट? So let's begin by seeing what are the instructions that you need to follow. As soon as the question appear, you have to just pause the video, take an OMR sheet, properly उसमें encircle कीजिए whether you are getting A, B, C, whatever is you are thinking is the correct option, and then only you have to resume the video. And finally, on a daily basis, don't forget to comment down your score, whatever you are getting, whether you are getting 0, 1, 2, 3, whatever, you have to just mention your score. जब आप स्कोर डेली मेंशन करेंगे तब आपकी एक हेल्दी हैबिट डेवलप होगी, और वो हेल्दी हैबिट क्या डेवलप होगी? वो हैबिट आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी किस दिन के लिए? डी डे, जिस दिन आपका एक्चुअल प्रीलिम्स का एग्जाम होगा. सो इट वुड बी केक वॉक, बहुत सिंपल एग्जाम लगेगा, क्योंकि तब तक आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपकी नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी होगी, राइट? अगर आपका स्कोर रहता है 0 out of 5, then friends, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? It's high time that you get started. If you are scoring 2 marks out of 5, you need to work very hard to make your way through, right? If you are scoring 3 out of 5, then a little more efforts will definitely help you to sail through this exam and crack this exam, right? If you are scoring 4, then it's good going. If you are scoring 5 out of 5, then you are in a great shape to clear the exam with flying colors. And one more thing, friends, there is no negative marking. Yes, there is absolutely no negative marking. So I want all of you to attempt all the 5 questions, right? So on that note, let us begin and see what is the first question. First question reads, Eat Right India is a flagship mission of which of the following? Option A, Ministry of Health and Family Welfare. Option B, FSSAI. Option C, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare. Or is it option D, that is Niti Aayog, right? So you know what to do. Just pause this video, right? Simply pause कीजिए, अपना आंसर को मार्क कीजिए, तभी ये एक्सरसाइज फ्रूटफुल है, अदरवाइज इट वोंट बी ऑफ एनी हेल्प, राइट? So the correct answer for this is option B, FSSAI, right? Now let us see ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया. Now here you can see this is a certificate being granted to Chandigarh railway station is certified as Eat Right station, सही भोजन बेहतर जीवन, as per guidelines established by Food Safety and Standards Authority of India, right? Proper 5-star rating has been given. And by the way, Chandigarh is India's 5th railway station to be certified as Eat Right India station, right? जैसे ही मैं बोलता हूँ भाई ये 5th रेलवे स्टेशन है, तो आपके माइंड में एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तब फर्स्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसको ईट राइट स्टेशन कहा गया है? सो इट इज मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, राइट? एंड डियर फ्रेंड्स, हियर एट यूपीएससी सेलेक्ट हमारा पूरा प्रयास, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएं, दे रिजेंबल एज क्लोज पॉसिबल एज टू ओरिजिनल यूपीएससी पेपर, राइट? आप देखें 2019 में आपसे क्या पूछा है. दे क्वेश्चंस हैव बीन प्रोवाइडेड बोथ इन इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी मीडियम में प्रोवाइड किए गए हैं क्वेश्चंस, राइट? सो 2019 में आपसे पूछा है अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द फॉलोइंग, राइट? सो बाय द वे द आंसर इज नीति आयोग. सो अगर किसी मिशन के बारे में बात किया जाए, किसी कैंपेन के बारे में बात किया जाए, राइट,
किसी स्कीम के बारे में बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट. सो now FSSAI has embarked on a large scale effort to transform the country's food system in order to ensure safe, healthy and sustainable food for all Indians through Eat Right India movement. आप सबने सुना होगा फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में, राइट. फिट इंडिया मूवमेंट इज देयर. सो उसी तर्ज पे ईट राइट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो देयर. एंड द टैगलाइन आपने ऑलरेडी वी हैव सीन, इट इज सही भोजन बेहतर जीवन. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अगर आपका भोजन प्रॉपर, उसमें न्यूट्रिशन होगा, प्रॉपर वाइटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सबकी मात्रा राइट अमाउंट में होगी, देन आप कम बीमार पड़ेंगे एंड ऑब्वियसली यू वुड लीड अ बेटर लाइफस्टाइल, राइट. नाउ Eat Right India adopts a judicious mix of regulatory, capacity building, collaborative and empowerment approaches. Now please pay attention, it is very important point which I am going to mention. And in order to ensure that our food is good both for the people and planet, यानी जो हमारा food है, food production है, वो ना सिर्फ लोगों की सेहत के लिए बल्कि it should also पे ड्यू अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ आवर प्लेनेट. और इसी बेसिस पे, इसी थीम के ऊपर यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. वी विल सी फर्दर, राइट. एंड फर्दर इट बिल्ड्स ऑन द कलेक्टिव एक्शन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, द गवर्नमेंट, द फूड बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, द एक्सपर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज एंड सिटीजंस एट लार्ज. In year 2022, UPSC has asked, among the following crops, which one is the most important anthropogenic, that is man-made source of both methane and nitrous oxide. तो इनमें से कॉटन राइस में से, शुगर केन वीट में से, द आंसर इज राइस. तो राइस का जो प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हो रहा है, राइट. सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर प्लेनेट. एंड 2022 में ही आप देखें आपसे क्या पूछा है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन ऑफ कल्टीवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ राइस फील्ड इज प्रैक्टिस. बेसिकली पैडी मतलब राइस यानी धान का जो फील्ड है उसको वेट और ड्राई किया जाता है. तो उससे क्या रिजल्ट होगा, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, यस सीड की कम जरूरत पड़ेगी. रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, मीथेन यस कम प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रिसिटी की कम रिक्वायरमेंट, यस. तो आप देख रहे हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी का कम कंजम्पशन है, मीथेन कम प्रोड्यूस हो रहा है, सीड कम लग रहा है, तो हमारा प्लेनेट कैसा होगा, तो प्लेनेट की सेहत अच्छी होगी, नो डाउट, राइट. तो आप देख रहे हैं फूड जो है वो ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि हमारे प्लेनेट के लिए भी अच्छा होना चाहिए. एंड 2021 में आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग among the following which one is the least water efficient crop. so the answer is sugar cane, क्योंकि sugar cane जो है वो एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, मतलब उसको प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. सो आप देखें एक ही थीम है और उस पर हाउ यूपीएससी इज डेवलपिंग और फ्रेमिंग क्वेश्चंस, राइट. एंड आप हमेशा ध्यान रखिए, आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना कि बस प्रीलिम्स पास करना है, पीटी मास्टर बन जाना है, आपको कोई गोल्ड मेडल देने नहीं आएगा, राइट. आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेंस भी क्लियर हो, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो, और ना सिर्फ इंटरव्यू क्लियर हो, आप प्रॉपर सर्विस में जाएं, और सिर्फ सर्विस में ना जाएं, आप बहुत अच्छी सर्विस करें, आप सोसाइटी की बहुत अच्छी सर्विस करें, नेशन और वर्ल्ड एज अ होल की बहुत अच्छी सर्विस करें. दैट शुड बी योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस में सभी के पास मोर और लेस सेम कंटेंट होता है, सेम सबके पास में लक्ष्मीकांत है, सेम द हिंदू सब पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस, मोर और लेस सबके पास सेम ही कंटेंट है. So what would make the difference? The difference is ultimately going to be made by your presentation. How do you present your answers? And moreover, whether you are able to address the demand of the question. आपसे क्या पूछा है, क्या आप उसी डायरेक्शन में आंसर दे रहे हैं? If yes, you are going to definitely get good marks, right? अगर हम बात करते हैं ईट राइट इंडिया के बारे में, तो इसमें बात करते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स है सब इन्वॉल्व है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है. सो इट इज़ वन ऑफ द मेथड. आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, फ्लो चार्ट, आप कुछ भी कहें इसको, दिस इज़ वन ऑफ द मेथड कि आप कैसे शो कर सकते हैं. होल ऑफ द सोसाइटी, बिजनेस एसोसिएशंस हैं, आपके फार्मर्स हैं, आपके साइंटिस्ट हैं, आपका यूथ है, पॉलिसी मेकर्स फ्रॉम द लबासना, दैट इज द ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ द सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स, राइट, और फूड न्यूट्रिशन प्रोफेशनल है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, सभी के सहयोग से कोई चीज़ होती है, राइट. नथिंग वर्क्स इन साइलोज, right. I hope this is clear. Moving further, Eat Right is aligned with National Health Policy 2017, right. और उसका फोकस किस चीज पे है? फोकस है पोषण अभियान. पोषण अभियान किसके बारे में है? सही पोषण तो देश रोशन, right. It talks about holistic nourishment and also it is also having focus on प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना under the आयुष्मान भारत. Anemia मुक्त भारत. For those of you who don't know what is anemia, so anemia is nothing but
disease you can say in which the oxygen carrying capacity of the hemoglobin RBCs get compromised, get reduced, right? And स्वच्छ भारत बच्चे को पता है, स्वच्छ भारत needs no explanation, right? So हम देख रहे हैं ईट राइट इंडिया मिशन के बारे में, राइट? So हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं, और जहां फूड की बात होगी तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमें हंगर की भी बात करनी पड़ेगी. वी आर इन द ईयर 2022, बट स्टिल दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट challenge that humanity is facing, right? In a world of plenty, hunger should be a thing of past. और आप सिर्फ ये मत लिख के आइएगा एग्जाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसकी बात होती है, आप प्रॉपरली मेंशन कीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 में इसकी बात होती है. दैट वुड एम्फेसाइज, एग्जामिनर को पता लगेगा आप एक सिंसियर स्टूडेंट है जिसके पास सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज नहीं है, राइट? और जब हम फूड क्राइसिस के बारे में बात करते हैं कि लाखों लोग मर रहे हैं, उसी बेसिस पे यूपीएससी ने 2018 में आपसे क्या पूछा है? वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लैक्स ऑफ पीपल इधर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमिन. आप देख रहे हैं भयंकर अकाल और कुपोषण के कारण प्रभावित हुए हैं, वहां पे युद्ध हो गए हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, कहां पे? यमन और साउथ सूडान में. सो दिस इज अ मैटर ऑफ शेम एंड चैलेंज. अगेन आई रीआइटरेट माई सेल्फ. और क्या सिर्फ सब कुछ खराब ही खराब है, सब कुछ ग्लूमी है, सब कुछ डार्क है? नो, इट इज नॉट द केस. आप अगर बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज की, राइट? नोबेल पीस प्राइज रिसेंटली किसको अवार्ड हुआ था? इट वॉज अवार्डेड टू वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, राइट? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वॉज अवार्डेड to counter this, to combat this hunger challenge, right? And moving forward, so FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2006 में. क्यों एस्टेब्लिश हुआ था, राइट? व्हेन? दीज आर द बेसिक क्वेश्चन. व्हाई? ऑब्जेक्टिव क्या था? सो ऑब्जेक्टिव आपने देखा होगा, फूड आर्टिकल जो पैकेज फूड आर्टिकल्स हैं उनमें FSSAI का लोगो आपने जरूर देखा होगा. सो साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करने के लिए फॉर आर्टिकल्स ऑफ फूड टू रेगुलेट देयर मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ होलसम फूड फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, राइट? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी आप कैंपेन को पढ़ रहे हो, मिशन को पढ़ रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखें कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है. आप देखें, ध्यान दीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर is the administrative ministry for the implementation of FSSAI, right? And 2018 में इसी बेसिस पे आपसे ये FSSAI के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, right? So I hope you have got an idea. Moving to question number 2. Question number 2 talks about region in news and the country. So region is Odessa, Armenia, Tigray, Ukraine, and third is Nagorno-Karabakh, that is in Iran. Bhashan 4, it's in Bangladesh. So which of the following mentioned pair is are correctly matched? Option A 1 and 3 only, option B 4 only, option C 1 and 2 only, option D 1, 2 and 3, right? So you know what to do. Just pause this video properly. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता OMR फिल करने में. प्रॉपरली आंसर कर कीजिए जो भी आपको आंसर लग रहा है. आई होप आप सबने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा. सो लेट अस सी हम आंसर तक कैसे पहुंचे. अब आप देखें ऑप्शन 4 में क्या दिया हुआ है, भाषण 4. तो भाषण 4 बहुत टाइम से न्यूज़ में है, राइट? मतलब कई सालों से इट हैज़ बीन इन न्यूज़, बहुत लंबे टाइम से. और न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में है ये रोहिंग्या इश्यूज़ की वजह से, राइट? रोहिंग्या इश्यूज़. सो भाषण 4 इज बेसिकली एन आइसोलेटेड आइलैंड इन बांग्लादेश, और यहाँ पे इनको डिस्प्लेस किया गया था, राइट? अगर आपको सिर्फ इतना सा ही फैक्ट पता है तब भी आप आंसर कर सकते हैं, राइट? हम देखेंगे कैसे. तो आपका 4 जो है ऑप्शन 1 में है, नहीं है. 2 में है, येस इट इज़ देयर. C में है, नहीं है. और D में है, नहीं है, राइट? इसी चीज से एलिमिनेशन से आपका आंसर आ गया, राइट? सो दिस इज हाउ यू प्रोसीड. और फॉर एग्जाम्पल आपने भाषण 4 के बारे में नहीं पढ़ा, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज ओडेसा इट हैज़ बीन इन न्यूज़, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. न्यूज़ में क्यों है? हम सभी को पता है, रशिया और यूक्रेन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. सो डेफिनेटली ओडेसा जो है वो आर्मेनिया में नहीं है. मतलब 1 जो है, ऑप्शन 1 जो है वो आपका नहीं होना चाहिए, राइट? सो 1 जो है वो गलत है. जहां 1 है उसको एलिमिनेट कीजिए, इसको एलिमिनेट कीजिए, इसको एलिमिनेट. यू विल रीच योर आंसर दिस वे और दैट वे, राइट? एंड आप देखिए 2018 में यूपीएससी ने आपसे कैसे पूछा है. टाउन्स दिए हैं, कंट्री यू हैव टू मैच द फॉलोइंग: अलेप्पो, किरकुक, मौसूल, मजार शरीफ. एंड 2022 में आपसे आईआर के काफी पूछा है, लेवांत. सो लेवांत क्यों न्यूज में था? लेवांत वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ आइसिस रीजन. एंड अगेन 2022 में आपसे क्या? अनातोलिया, अम्हारा, कैबो डेलगाडो, दिस कैटेलोनिया इन स्पेन बिकॉज ऑफ द फ्रीडम इशू, बिकॉज ऑफ रेफरेंडम, वो आज़ाद होना चाहता है, राइट? सो आप देख रहे हैं हाउ यूपीएससी इज आस्किंग एंड हाउ यूपीएससी सिलेक्ट इज आस्किंग यू क्वेश्चंस, राइट? एंड 2022 के अंदर, सेम ईयर,
4 कंट्रीज मेंशन है, चैड, गिनिया, लेबनान, टूनेशिया, और प्रोमिनेंट जो इश्यूज हैं वो मेंशन है. सो आईआर के अंदर लोकेशन बिकम इंपॉर्टेंट, इवेंट बिकम्स इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट की यूक्रेनियन पोर्ट ऑफ ओडेसा बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है. सेकेंडली जो आपको टिग्रे दिया हुआ था, टिग्रे कहां पे है? टिग्रे इज इन नॉर्थ इथोपिया, और टसल किसके बीच में है? इथोपिया एंड सूडान, राइट. नाउ दिस नगारबानो खारबाक वेरी मच इन न्यूज, बहुत ज्यादा न्यूज में था. इट्स अ टसल बिटवीन आर्मेनिया अजरबैजान, राइट. भाषण 4 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड दिस इज द मैप. आप देख सकते हैं ओडिशा पोर्ट सिटी है, ब्लैक सी को बॉर्डर कर रहा है, एंड दिस यूक्रेन की कैपिटल कीव है, राइट. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. Question number 3 talks about which of the following statements with reference to Supreme Court and High Court is are incorrect. अब गलती कहां पे हो जाती है? अंडर प्रेशर आते हुए भी लोग इसको करेक्ट इनकरेक्ट को आपस में गलत पढ़ लेते हैं, राइट. ये नहीं होना चाहिए. यू हैव टू हैव एन ईगल साइड, पास जैसी तेज निगाह होनी चाहिए, रेजर शार्प फोकस होना चाहिए आपका, राइट. बिकॉज यू विल बिकम एसपी, राइट. आप एसपी बनेंगे, आप डीएम बनेंगे, आप फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे और अदर सर्विसेज में, तो वहां पे सिली मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं होगी. तो जब वहां नहीं होगी तो यहां भी सिली मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल नहीं होगी, राइट. सो स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है आपको? द रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सेकंड, the High Court can issue writs to any person, authority and government only within its territorial jurisdiction. So choose the correct answer using the code given below. Option A 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2, option D that is none of the above, right. आपको पता है, you have to pause this. I hope आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा. So now let us see how do we arrive at the right solution, right. So statement 1 is definitely correct. कि जो रिट ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट का वो सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन से वाइडर है. हम देखेंगे, राइट, कैसे है वाइडर. एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है हाई, अब देखें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेटली करेक्ट है, बट आपसे क्या पूछा है? इनकरेक्ट, राइट. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, तो जहां भी स्टेटमेंट 1 है वो आपका आंसर नहीं हो सकता. सिर्फ इतनी सी चीज से आपका 50% प्रोबेबिलिटी हो गई है दैट यू विल गेट एन राइट आंसर, राइट. स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है? स्टेटमेंट सेकंड टॉक्स अबाउट हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट. नाउ दिस इज एक्सट्रीम वर्ड्स, दीज आर एक्सट्रीम वर्ड्स. प्लीज पे अटेंशन. आपने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, एक्सट्रीम वर्ड्स जनरली गलत होते हैं. यस माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर जनरली रॉन्ग बट नॉट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. इस चीज का बहुत आपको ध्यान रखना है, राइट. सो High Court can issue writs to any person, authority and government only within its territorial jurisdiction. This is definitely a wrong statement, right? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली, राइट. सो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. अगर हम राइट्स के बारे में बात करते हैं, राइट, तो राइट आप फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, आपके अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हो सकते हैं, राइट. अदर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हो सकते हैं, और राइट्स को आप बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. एनिमल राइट्स, देन वी हैव ट्रांसजेंडर राइट, वी हैव यू कैन से एनवायरमेंटल राइट, बट दिस इज आउट ऑफ स्कोप फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिट ज्यूरिडिक्शन. हम पॉलिटी के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, राइट. सो बोथ ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दे हैव अ पावर. अगर किसी को लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है अंडर दीज आर्टिकल्स, राइट. बट व्हेन वी टॉक अबाउट हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन इस मामले में भी बढ़ जाता है. आई होप दिस इज क्लियर. यही लिखा है यहाँ पे, हाई कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट फॉर अदर पर्पसेस. वेरी मच क्लियर. And the High Court, on the other hand, can issue writ not only for the enforcement of the fundamental rights but also for other purposes as well. Pretty simple, pretty straightforward, right? Please pay attention, this is important. But the parliament, mind the word is the parliament, can confer the Supreme Court the power to issue writs for other purposes also, right? अगर parliament को किसी stage पे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को थोड़े से और पावर ग्रांट होने चाहिए, देन इट कैन कॉन्फर द राइट्स कि आप फंडामेंटल राइट्स में तो रिट जारी कर ही सकते हैं, आप दूसरे राइट्स में भी कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज पावर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट. नाउ स्टेटमेंट सेकंड इज आर्टिकल 226 जो है, it empowers a high court to issue writs including the habeas corpus, that is to bring the body of mandamus certiorari prohibition quo warranto. इसको एक सेपरेट पॉलिटी लेक्चर में डील किया जाएगा, राइट. सो
आर्टिकल 226 जो है वो एम्पावर करता है हाई कोर्ट को कि आप रिट इशू कर सकते हो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, एंड फॉर अदर पर्पसेज। नाउ ये जो अदर फॉर एनी अदर पर्पसेज है, ये फ्रेज का मतलब क्या है? फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट, ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। अब हम बात करते हैं, सपोज लेट अस टेक अ फिक्टिशियस एग्जांपल, लेट अस से कैलकाटा हाई कोर्ट इज देयर, और ये जो रीजन है ये इनकी क्या है? ये इनकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का एरिया है, राइट। सो इस एरिया में तो वो रिट इशू कर ही सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, राइट। बट कैन दे इशू रिट्स फॉर अदर एरियाज एज वेल? फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लेस है, फॉर एग्जाम्पल ये महाराष्ट्र के अंदर कोई प्लेस है, सो क्या इस केस में भी कैलकाटा हाई कोर्ट की ये पावर है कि ये रिट इशू कर सकते हैं? नाउ लेट अस सी कैसे। येस इट कैन इशू, इट कैन वेरी मच इशू, बट देर इज अ कंडीशन। अब देखें, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, नॉट ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन बट ऑल्सो आउटसाइड। तो ये तो क्लियर है, आउटसाइड भी कर सकते हैं, आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। बट कंडीशन क्या है? इफ द कॉज ऑफ एक्शन, this is important, if the cause of action arises within this territorial jurisdiction, right? Hope it is pretty much clear. Moving further, question number 4 talks about NFT is often seen in news, is related to which of the following? Option A, China's artificial sun project, which broke the world record after sustaining a nuclear reaction at 70 million degrees Celsius for more than 17 minutes. Option B, biotechnological intervention for curing the mitochondrial abnormalities in unborn babies. Or is it option C, that is cryptocurrency based digital assets? Or is it option D, that is NASA ISRO collaboration to study the meteoroids to unravel secrets of Earth evolution? आई होप आप सबने वीडियो पॉज करके अपना आंसर मार्क कर लिया होगा प्रॉपरली, ओनली देन दिस इज गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल एक्सरसाइज। आई विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन, राइट। सो द करेक्ट आंसर बाय द वे इज ऑप्शन सी, दैट इज क्रिप्टोकरेंसी बेस्ड डिजिटल एसेट्स। लेट अस सी, अब 2022 में यही क्वेश्चन आपसे एनएफटी के बारे में पूछा है, यू कैन हैव अ रीड ओवर हियर। सो NFT बेसिकली स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन। अब ये फंजिबल नॉन फंजिबल क्या है, फंडा क्या है, हम देखेंगे आगे, राइट। सो NFT इज बेसिकली अ डिजिटल एसेट है दैट रिप्रेजेंट्स अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक द आर्ट, द म्यूजिक, इन गेम आइटम्स, वीडियोस। और जैसे आप किसी चीज को खरीद बेच सकते हैं ऑनलाइन, तो सिमिलरली आप NFTs को भी ऑनलाइन खरीद बेच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, एंड दीज आर जनरली एनकोडेड विद द सेम अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर एज मैनी क्रिप्टोज। अब आप सोच सकते हैं, आपके मन में आ सकता है कि भाई ये NFT वर्सेस क्रिप्टो, ये क्या फंडा है, NFT क्रिप्टो में डिफरेंस क्या है, राइट। तो वो भी हम समझते हैं कि हाउ इज एन NFT डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। सो फिजिकल मनी एंड क्रिप्टो करेंसीज आर फंजेबल। अब ये फिर फंजेबल वर्ड आ गया, तो इसको हम यहीं पे क्लियर करते हैं कि फंजेबल होता क्या है, राइट। Meaning they can be traded or exchanged for one another. They are also equal in value. $1 is always worth another dollar. $1 की कीमत हमेशा दूसरे डॉलर की कीमत के बराबर है। एक बिटकॉइन की वैल्यू दूसरे बिटकॉइन के बराबर है। मेरे पास लेट से 2000 का नोट है, आपके पास भी 2000 रुपए का नोट है, देन वी कैन इजीली एक्सचेंज, वी कैन इजीली ट्रेड, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस चीज को क्या कहा जाता है? इस चीज को फंजेबल कहा जाता है। अब आ जाते हैं NFT पे, राइट। सो NFT क्या है? NFT हैज अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर होने की वजह से क्या होता है कि एक NFT को आप दूसरे NFT के साथ इक्वेट ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे यहां पे पॉसिबल है, यहां पे पॉसिबल नहीं है। ईच NFT हैज अ डिजिटल सिग्नेचर that makes it impossible for NFTs to be exchanged for or equal to another, hence these are non fungible, right। तो ये fungible है, ये non fungible है। very much clear। इसको एक दूसरे एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, उनका नाम A और B दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। दोनों ने UPSC की तैयारी स्टार्ट की, धूमधाम से स्टार्ट की, ठीक है। दोनों NCERT लेके आए, बिपिन चंद्रा हिस्ट्री NCERT आप सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। न्यू ब्रांड बिल्कुल चमचमाती हुई। अब ए ने जो है वो पहले दिन ही आते बहुत सारे यहाँ पे नोट्स बना लिए, मार्किंग कर ली, हाईलाइट कर लिया, अच्छे से तैयारी। अब बी जो है वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, कोई शुभ घड़ी आएगी तब तैयारी शुरू होगी। उनकी किताब अभी भी नई की नई है। अब नाउ यू कैन से दिस NCERT विच बिलोंग्स टू पर्सन ए इज अ काइंड ऑफ NFT। वाई बिकॉज ये जो बुक है ये पूरे वर्ल्ड में यूनिक है, बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग, बिकॉज ऑफ द मार्किंग्स, बिकॉज ऑफ द हाईलाइटिंग्स जो उन्होंने हाईलाइट किया है इस बुक के साथ में, राइट। सो दिस इज समथिंग यूनिक।
एक दूसरा एग्जांपल अगर आप लेना चाहें इसी केस में, हम सबको पता है मोनालिसा, ठीक है, मोनालिसा कहीं से भी ये रिप्रेजेंट नहीं हो रही, बट आप समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए, मोनालिसा जो है वो फ्रांस में उनकी पेंटिंग है, राइट। अब मोनालिसा की जो एक्चुअल पेंटिंग है उसकी आप 1 करोड़ से भी ज़्यादा फोटोकॉपी बना लीजिए, बट क्या वो जो फोटोकॉपीज़ हैं क्या वो सेम वैल्यू होल्ड करेंगी जो ओरिजिनल मोनालिसा की पेंटिंग है? एब्सोल्युटली नो, राइट। So NFT has something unique, a unique digital signature. So that makes it non-fungible. Hope it's clear. Moving to question number 5, that is the last question for today. JCPOA. अब ये क्या है? That is Joint Comprehensive Plan of Action. Often talks about P5 plus 1. 1 in this P5 plus 1 denotes option A Israel, option B Germany, option C South Korea, option D that is Denmark. You know the drill by now, right? होप आप सबने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जर्मनी, राइट। बट हम यहीं पे नहीं रुकेंगे कि ओके 1 जो है जर्मनी, बात खत्म, नहीं। वी विल सी, वी विल एनालाइज। 2018 में आपसे क्या पूछता है यूपीएससी? इट इज आस्किंग द टर्म टू स्टेट सोल्यूशन। टू स्टेट सोल्यूशन किसके बारे में था? तो बेसिकली इट वॉज बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, इजराइल पैलेस्टीन के इशू, राइट। तो दिस इज हाउ यूपीएससी इज आस्किंग। अब बात कर लेते हैं JCPOA। अब ये क्या है? वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट और अकॉर्ड बिटवीन ईरान एंड द वेस्टर्न पावर्स मेनली, राइट। अब P5 क्या है? P5 ऑल ऑफ अस नो, UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? 5। US, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया। बचपन से पढ़ पढ़ के हमें अच्छे से रट चुका है, राइट। एंड दिस needs reform. This is a multilateral organization. तो यहाँ पे multilateral reform का भी एक issue आ सकता है और आता है, right? That should India get a permanent membership or not, right? So this is a separate topic. Anyways, coming back to this JCPOA. तो 2015 में ये बात चल रही थी JCPOA के बारे में। अब एलिगेशन क्या लगाता है? वेस्ट एलिगेशन ये लगाता है कि ईरान जो है, बहुत ज़्यादा टेंशन होने के बाद, कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इट इज़ टू मेक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बट ईरान क्या बोलता है? ईरान काउंटर करता है। ईरान कहता है कि नहीं जी, हमारा तो पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पीसफुल पर्पसेस के लिए, हम तो पावर प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे, राइट। इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए देयर वाज दिस JCPOA। होप इट इज़ क्लियर, वेरी मच क्लियर। नाउ दिस इज वन इम्पॉर्टेंट मैप। इस मैप के ऊपर आप देख सकते हैं एनरिचमेंट साइट्स जैसे फोर्दो, नातांस, इस्फहान, बुशहर, राइट। एंड दिस बंदर अब्बास। बंदर अब्बास किसके पास में है? छाबार पोर्ट के पास में है, राइट। ऑल आर दीज इन ईरान, राइट। यूरेनियम माइन इज देयर इन बंदर अब्बास। एंड हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, वी विल ऑल्सो स्टडी समथिंग रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दिस क्वेश्चन ओनली। IR हमने देखा, राइट। खैर, साइंस एंड जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही है, सो यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है? अब यूरेनियम को आपने सुना होगा, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, राइट। तो इसी तरीके से यूरेनियम को आप जितना एनरिच करोगे तो वो उसके पर्पसेस अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। यूरेनियम कैन हैव न्यूक्लियर रिलेटेड यूजेस वंस इट हैज बीन रिफाइंड और एनरिच्ड। नाउ दिस इज अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ इट्स मोस्ट फिसाइल आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? फटाफट आप लिखें, कमेंट कीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बट आइसोटोप। सिंपल बेसिक स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, राइट। यूरेनियम 235 थ्रू द यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन विच स्पिन एट सुपरसोनिक स्पीड्स। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपका यूरेनियम 3 to 5% कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसको लो एनरिच यूरेनियम की कैटेगरी में डाला जाएगा और उसका यूज क्या होगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। जैसे पावर प्लांट में कोल यूज होता है तो इसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी से भी पावर जनरेट हो सकती है, राइट। अगर वही कॉन्सेंट्रेशन 3 to 5% से बढ़ा के 20% या उससे ज़्यादा कर दें तो उसको हाईली एनरिच यूरेनियम की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं एंड इट इज़ यूज फॉर रिसर्च रिएक्टर्स। और जब ये 3 से 5% यहाँ पे था, 20% या उससे ज़्यादा था, जब यही चीज़ 90% और इवन मोर हो जाता है देन इट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज वेपन ग्रेड का यूरेनियम ये कहलाता है, राइट। So I hope all the points are pretty much clear. On this note, let's end today's session. That don't just watch the clock, do what it does, that is keep going, right? So if you are having any feedback, any suggestions,
please feel free, right? It is your platform. We are here to help you out, right? So on that note, bye for today and thank you so much.